कांस्टेंट फोर्स F एक्ट कर रही है विच चेंजेस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम r1 टू r2। तो ये वेक्टर कौन सा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अगर मैं पूछूं S कितना है, r1 प्लस s इज r2, ट्रायंगल लॉ। r1 के हेड के साथ s की टेल, तो ये जो क्लोजिंग साइड है दिस इज r2, वी कैन से s इज r2 माइनस r1। कि अगर बॉडी का इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 है, फाइनल r2 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज r2 माइनस r1 और वर्क डन इज f डॉट s, तो मतलब f डॉट r2 माइनस r1। सो डायग्राम बनाओ, फिर इसको लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। डायग्राम बना लो सिर्फ अभी। Consider a constant force F acting on a body. Consider a constant force F acting on the body which changes its position vector. Which changes its position vector from R1 to R2. Which changes its position vector from R1 to R2 under the application of force. Which changes its position vector from R1 to R2 under the application of force. In coordinate form, F, R1 and R2 can be represented as, in coordinate form, F, R1 and R2 can be represented as वेक्टर्स में किया था हमने। S and S will be equals to R2 minus R1. R2 minus R1 will be this work done is so this is the formula in coordinate form अगर work done निकालना है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर y2 जैसे अगर एक भी कंपोनेंट नहीं दिया होगा जैसे y और z में, तो फिर हम उसको जीरो ही कंसीडर करेंगे उसको और जीरो का, हाँ उसको जीरो ले लेंगे फिर। ओके सर।
में दिया block of mass m is pulled on a rough horizontal surface which has friction coefficient mu. Horizontal force F is applied which is capable of moving the body with uniformly with speed v. Find work done on the block in time t by weight of the block, normal reaction, friction and applied force. So हमें question में basically given है block of mass m. It's placed on rough horizontal surface with coefficient of friction mu. Horizontal force F is applied, which is capable of moving the body with uniform speed. ये constant speed से move कर रही है. ये friction हमने बताना है work done in time t by all the four forces. Applied force का work done कितना है, normal reaction का, weight का और friction का. So first thing first अगर हम करें इसे body is moving with constant speed, इससे क्या conclude कर सकते हैं? दो conclusions निकलेंगी. एक constant speed है मतलब acceleration zero है, net force zero है. As body is moving with constant velocity. Implies net force is equals to zero का मतलब है कि ये दोनों forces equal होंगी हमेशा. Because अगर applied force ज्यादा होती तो इसने accelerate करना था. So net force should be zero means applied force and frictional force are zero or equal. A part है work done by और displace ये इस direction में होगी. अगर constant velocity है तो distance traveled in time t कितना हो जाएगा? Body यहाँ पहुंच जाएगी. S से करो vt, a zero है तो W में और S में एंगल कितना? 90 वेट में degree. 90 तो वर्क डन विल बी Zero. नॉर्मल रिएक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में भी 90 डिग्री का एंगल. सो नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट are perpendicular to S. So work done is zero. फ्रिक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल, फ्रिक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में 180. 180. फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड तो वर्क डन कितना हो जाएगा? Negative. We can say work done is Fs cos 180 और minus Fs और minus F into Vt. Applied force में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो तो वर्क डन Fs cos जीरो cos 0 is 1 so simply Fs और Fvt. अगर मैं नेटवर्क डन पूछता तो बिकॉज नेट फोर्स जीरो है तो नेट वर्क डन भी जीरो ही आएगा बिकॉज वर्क डन इज नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वैसे भी देखोगे तो ये वर्क डन तो जीरो है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी जीरो आ जाएगा. सो नेट वर्क डन इज जीरो. आया समझ कैसे किया? Yes, sir.
A body is constrained to move in a y direction. It is subjected to a force minus 2i plus 15j plus xk. Work done in moving a body through a distance of 10 meter. Easy है तो जल्दी से कर दो. अगर हमें दिया body displaces through 10 meter in positive y direction तो displacement कितनी लेनी है? 10 meter in positive y direction मतलब I cap, j cap, k cap. J cap. J cap तो displacement is 10 j cap. Force given है, displacement given है, work done निकाल दो कितना आएगा. One line question है ये तो बिल्कुल. 10 meter in positive y direction is 10 j cap. I dot j 0 होता है and j dot k भी 0 होता है. So you will get simply 15 into 10 j dot j और 150. Because हमें पता है कि I dot j भी 0 होगा और j dot k भी 0 होगा. And j dot j is 1. So I dot j 0, j dot j 1, k dot j भी 0. So 150 joules. इसको करो सॉल्व. अभी किया है मैथड. Object is moving from along a straight line path from P to Q under the action of force 4i minus 3j plus 2k and coordinate of P and Q are given. Basically हमें क्या दिया? Force दी है. ये R1 R2 की वैल्यू दी है. R1 is 3i plus 2j minus 1k because x1, y1, z1. Similarly, x2, y2, z2. डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई फिर? अभी पीछे फॉर्मूला क्या लिखा था? R2 minus R1. R2 minus R1 की वैल्यू बताओ. X2 minus X1 is So minus I cap minus 3 J cap plus 3 K cap. so you get minus I cap minus 3j cap plus 3k cap और फोर्स भी गिवन है तो वर्क डन आ जाएगा F dot S. फोर आई minus 3j plus 2k dot dot product लोगे तो it will be 4 into minus 1 11.
Block of mass 20 kg slowly slid up a smooth inclined plane of inclination 53 degree. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 4 meter. और हमें दिया है ड्राइविंग फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइन. ये बी पार्ट कर लो, ए पार्ट रहने दो, ए पार्ट इजी है. Driving force is applied in horizontal direction. A block of mass 20 kg slowly slid up an inclined plane of inclination 53. ट्वेंटी kg का ब्लॉक है, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं F, एंड इसको ऊपर लेके जाना है. हमने बताना है वर्क डन इन मूविंग इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. फोर मीटर ऊपर लेके आने का वर्क डन. Work done by the person in moving the block through a distance of 4 meter. कैसे करें? स्लोली स्लेड अप का मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन लेके जाना है. और स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं है कोई भी. सो यू कैन राइट by slowly sliding up it implies that. By slowly sliding it implies that net force should be 0 and acceleration should be 0. Net force should be 0 and acceleration should be 0. Net force should be 0 and acceleration should be 0. Thus, if force F is applied in horizontal direction, if force F is applied in horizontal direction, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे? ये एंगल 53 तो ये भी 53. इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा? F cos 53 degree. और ये F sin 53. F sin 53 degree. Similarly, mg अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाना है जीरो एक्सेलरेशन के साथ, तो F cos 53 should be equals to mg sin 53 for zero acceleration of block. हमें F तो दिया नहीं, मास दिया 20 and sin 53 is 4/5. So 640 joules.
because f cos 53 into s, so f cos 53 mg sin 53 के इक्वल होगा. नेक्स्ट आता है इसमें, if the force is variable. Work done by variable force. Force varies with position of body. अब f dot s डायरेक्ट नहीं लग सकता because f variable है. So you can write if force is variable. If force is variable, f dot s cannot be used because force keeps on changing. Force keeps on changing either its magnitude or direction. Force keeps on changing either its magnitude or direction. With position. Therefore, we divide total displacement into number of small displacements Therefore, we divide total displacement into number of small displacement dx each. If work done so one small displacement is calculated, we integrate to find the total work done. अगर हम इसी को 3D में लिखेंगे, 1D की जगह, because x लिख रहे हैं तो it's a 1D relation.
सो 3D में हम f डॉट डी आर एंड R1 टू R2 कर देंगे. अब इंटीग्रेशन का इसमें जो फॉर्मूला यूज होना है, एक ही फॉर्मूला यूज होगा सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस का, एंड उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं. फिर दो फॉर्मूले. पहला फॉर्मूला जो यूज होगा दैट इज x रेज टू पावर n into dx फॉर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन x रेज टू पावर n. द फॉर्मूला इज, इसको नहीं भी लिखोगे c को तो भी चल जाएगा, बट इट्स अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. मतलब अगर मेरे को जैसे इंटीग्रेट करना है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल बट n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1. जैसे मेरे को ऐसे दिया x रेज टू पावर 2 dx, n की जगह 2 दिया है, इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 + 1 over 2 + 1 x³/3. अगर लिमिट्स दे रहे जैसे यहाँ पे x1 x2 लिखा हुआ है, इफ दे गिव द लिमिट्स, से मान लो 2 to 4, पहले x1 dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x²/2. लिमिट्स हटाने का मेथड होता है, पहले तो जब इंटीग्रेट करेंगे ब्रैकेट के साथ लिमिट्स लगा देंगे. लिमिट्स हटाने का मेथड है कि पहले x की जगह अपर वैल्यू पुट करो, माइनस x की जगह लोअर वैल्यू. अगर x की जगह अपर वैल्यू पुट करो तो x² की जगह 4²/2 माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, so 16/2 is 8 and 4/2 is 2, so 6 आंसर आ जाएगा. ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन के कर सकते हैं, पर इस चैप्टर में सिर्फ एक ये फॉर्मूला लगेगा, और एक इससे भी सिंपल है कि अगर कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 पाई, ऐसे कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है कांस्टेंट इनटू x. मतलब जैसे मैं बोलूं इसको इंटीग्रेट करो 3 को, दिस विल बी 3x. कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x. अब इस मेथड से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, और दूसरा ग्राफ से भी निकाल सकते हैं जो हमने कांस्टेंट फोर्स में किया था. कैसे, जैसे मैं आपको बोलूं से एक फोर्स है, आई कैप मतलब किस डायरेक्शन में लग रही है, X. x डायरेक्शन में. and displaces body from x is equals to 2 meter to x is equals to 5 meter. Find the work done. f is equals to 2x plus 3 हमें, और i कैप का मतलब इसकी डायरेक्शन तो नहीं बदल रही, पर x के साथ साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है. अगर मैं लिखता हूँ f is equals to 2x plus 3, this implies f changes with change in value of x, मतलब वेरिएबल फोर्स है. तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. बॉडी को x is equals to 2 से
तो मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली dx, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0, वर्क डन इज मतलब वर्क डन इज टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट x वेरीज फ्रॉम 2 to 5। तो x varies from 2 to 5। पहले दिस इज 2x रेज टू पावर 1। पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्मूला लगाएं तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर 1 इज इन लिमिट्स 2 to 5, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, लिमिट्स 2 to 5। सॉल्व करके क्या आएगा, पहले x की जगह 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी पहले x की जगह 5 फिर 2, 5 minus 2, so this comes out to be आंसर 30 है, 30 जूल्स। so 30 joules। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। मैं इसको ऑपोजिट भी कर सकता था ग्राफ से। हमें x और फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। x अगर 0 है तो f की वैल्यू 3, 2x प्लस 3 है, 1 है तो 5, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए f की वैल्यू निकाल ली मैंने। f और x में ग्राफ प्लॉट किया, x अगर 0 है तो फोर्स 3 है, 2 3 4 5, x की वैल्यू 5 तक जाते जाते दिस वैल्यू इंक्रीजेस टू 13। x1 है तो ये 5 है, x2 है तो दिस इज 7 एंड सो ऑन। हमने बताना है वर्क डन टू मूव फ्रॉम 2 to 5। 2 to 5 तो एरिया कौन सा बनेगा, एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम 2 to 5। दिस एरिया विल बी वर्क डन, ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया ये साइड 5 है, ये साइड 13 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3। सो वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ हाफ sum of opposite sides into distance between the sides। My answer different क्यों है? This is 9 into 3 27। सो वहाँ पर 5 की जगह 7 नहीं आएगा बिकॉज ये वो वैल्यू डिस्टेंस गलत तो 7 नहीं है। पुट की कोई, हाँ ये वैल्यू गलत पुट कर दी, ये 7 था। सब ग्राफ से करोगे तो भी 30 आएगा, या हम नॉर्मल करेंगे तो भी सेम ही आएगा इंटीग्रेशन से।
देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो। Next is a force acting on a body. A force acting on a body is given by F is equals to K by R square. F is equal to K upon R square. Find work done to displace the body from infinity to R1. Given that direction of force is always parallel to displacement. Given direction of force is always parallel to displacement. क्वेश्चन समझ आया? एक बॉडी पे फोर्स लग रही है k बाय आर स्क्वायर, तो हमने बताना है उसको इन्फिनिटी से R1 तक लाने में कितना वर्क डन होगा। आपको याद है आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसको डिफाइन कैसे किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? Work done in moving a charge from infinity to one point. यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, बस उसी जगह पे यूज होना है। जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना है तो वर्क डन वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल, हमने वर्क डन बताना है। तो फोर्स मैंने दे दी k बाय आर स्क्वायर, इन्फिनिटी से R1 तक लेके आए तो वर्क डन कितना? फोर्स हमें दिया इट ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे समझो। हमने बॉडी को इन्फिनिटी से लेके आना है और P1 तक लाना है। किसी पॉइंट पे जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस r है, जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज k बाय आर स्क्वायर। तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल लेंगे और हमें क्या, फोर्स की डायरेक्शन वही है जो डिस्प्लेसमेंट की है। तो वर्क डन इज एफ डॉट डी आर, और एफ डी आर कॉस जीरो और एफ की वैल्यू as force is variable, work done for small displacement dr.
Is F and D are parallel? Cos 0 is 1. Total work done. Infinity to R1. Lower limit infinity, upper limit R1. One by R square means R raised to power minus 2. So integration minus 2 plus 1. One by infinity is 1 by infinity की value Not defined. 0. 1 by 0 not defined होता है. Anything divided by infinity will be 0. So this is minus k by R1. इसको हम ग्राफिकली नहीं कर पाएंगे. रीजन बीइंग, इसको हम ग्राफिकली नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी नहीं कर पाएंगे, बाद में 12th में शायद कर लोगे, अभी नहीं कर पाओगे. रीजन फॉर दैट इज बिकॉज 3D है और बिकॉज 1 बाय आर स्क्वायर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा. पहले हमने जो लीनियर फंक्शन लिया था f इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वो लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो एरिया निकालना आपके लिए आसान रहता है. बट अगर फोर्स इस तरह से है 1 बाय आर स्क्वायर, तो जो ग्राफ है वो वेरिएबल बनेगा. वेरिएबल मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा. अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊंगा तो इट विल बी ऑफ दिस शेप, और इन्फिनिटी पे जाके 0 को टच करेगा. तो ये एरिया निकालना नहीं आता अभी आपको. 12th क्लास में फंक्शन एरियाज का जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मैथ्स में सिखा देंगे, बट मेडिकल वालों को तो फिर भी नहीं आता. तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वी प्रेफर टू यूज इंटीग्रेशन मेथड. इंटीग्रेशन मेथड फिर आसान रहेगा. सो यू कैन राइट, इसको लिख लो आगे. as force varies non-linearly, as force varies non-linearly with distance, therefore the graph will not be a straight line. Graph will not be a straight line. Therefore, graphical method is not used to find. Graphical method is not used to find the work done. So इसके आगे नेक्स्ट टाइम करते हैं. सर हाँ जी, सर वो लॉज ऑफ मोशन की कोई वर्कशीट अपलोड होगी आपने? कर दूंगा मैं, अभी कल सुबह करूंगा, अभी तो नहीं, कल सुबह कर दूंगा. ओके सर.